So, good morning, Dr. Shomit. It's a nice meeting to you today, this morning. This In this meeting, we are going to talk about how you can planning to transform the entire aviation industry. You started your journey as an employee or entrepreneur, but today you are heading almost 10 different companies. So, and your journey itself are very interesting, Dr. Shomit. So, I'd like to know something about your employee-centric journey or entrepreneur journey to the entrepreneur journey, sir. So basically, we already had discussed in length about my career in aviation. Okay, so I would say like right now, what is the focus for me is to grow the industry because this industry have huge potential, and we are sitting on a gold mine if I say because this is not going to get outdated. Aviation is never going to get outdated. If you say it's a future, like I saw a few of the videos of Dr. Vivek Bindra, which he was talking about 2050. Okay, Right, the right, clothes can change, the papers can change, but the flying correct, objects will remain the same. Because right, if you want to get transport to some place, you need aviation support in future. You know, right, so we right, are with aviation because I saw some of your show where you are saying that you are promoting the startups. So I saw somewhere like people are coming with a mask and showing that we are launching a new type of mask. So I say like these business are temporary. Some business are very temporary. Till the time the pandemic is there, people will use mask, then it's drop. So by that business is correct, closed. But now we are there in the business which is gonna last for long till the human race is there. So right, that is what aviation is all about, and that's the reason we are into aviation because we want to give a right knowledge to the right people about the okay, aviation because people have less knowledge, and the less knowledge is more dangerous. correct, Would like correct. to give more Getting knowledge about aviation and what going to be the future with aviation. So that's what. And career wise, definitely it have a huge scope because if we say we are still 10, 20 years behind America, when we compare, like we are hardly 10% of what America is right now in aviation. okay, So okay, that's the reason, like we are focusing for more knowledge of this thing, and with aviation, we are collaborating with bigger universities to provide a right knowledge. So now, if I say about the education side, where we are pioneer of aviation education, this entire industry is untouched so far because now the courses like BCom, BA, BCA, it's getting outdated. People are not interested correct. anymore with traditional course because might be their grandfather had did the same course True, true, and the young true. generation doesn't want to go for the same thing. They are looking Right. something new, you know. So that's what we are designing. And even the university who are approaching us, they always come up with the same question saying, "Sir, do you have something unique which we can provide to students?" You know. So they want to design something unique courses which is future oriented. Nowadays you can see bachelor in cyber forensic, bachelor in digital marketing. These courses are trending. Why? Because this is Correct, future. Same way when it correct. comes to aviation, students are very keen. The universities who are designing the syllabus, they are minting money from these courses because people Great. want to know, people want to study about this courses. So that's the reason we in the market are with a unique concept of designing a aviation syllabus and giving a aviation knowledge to the youth. Okay, okay, So right now we say we don't have any competitor. You can take the entire market. We don't have any competitor in the segment which we are right now. Because okay. there might be some institute who are giving aerospace training, who are giving ground support training, but there is Mhm. no institute in the entire nation who give a to Z knowledge about the aviation. So we are the only one right now in the market. Okay, so you are Dr. Shumit, you are the only one and number one who are going to transform the aviation industry, right? Yes, बट yes, proud to एविएशन say that. itself काफी इंटरेस्टिंग और इंडस्ट्री है सर मेरा दूसरा सवाल ये है कि आपकी लाइफ भी काफी मिस्टीरियस है बिकॉज वन पॉइंट ऑफ Right. टाइम इट हैज बीन डिक्लेयर्ड दैट you are dead somehow. I'm getting Yes, scared yes, to use this word. So yes, how yes. that dead declared personality and today you are here to create history. So how will you define that life to this lecture?
You see, basically, when you see, it's a childhood dream to be a part of aviation. Same for Okay. me also. It was from a childhood. I wanted to become a pilot. Okay, Uh-huh. so when we are like child, 4 5 years old, we used to roam with a plane and all to become a pilot. But a person who are from a below middle class family can't afford our training structure of a pilot because it costs around 30 to 40 lakh rupees. At the time when I completed my education and came to the industry, but I never given up for my career because my father is a tailor. So एक Okay. टेलर के बच्चों को बड़ा सपना देखने का हक नहीं होता अपने देश में, ये तो सबको पता है। तो Mm. हम वो बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं जहाँ पे 2 टाइम का खाने के लिए सोचना पड़ता था हमको, कि क्या कल खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो वो फैमिली बैकग्राउंड से जब मैं निकला तो एक सपना था कि इतना कमाना है कि 7 जनरेशन को कमाना ना पड़े। तो ये एक टारगेट Oh, था। पर स्टेप अप करना है, तो डेफिनिटली बोलते हैं ना स्काई इज़ द लिमिट। तो सपना तो ऊँचा correct. दिख रहा था। डेफिनिटली वो हम एक ना सोसाइटी हमारे इंडियन सोसाइटी को मैं क्रैप बास्केट कहता हूँ, जहाँ पे हम एक-दूसरे का टाँग खींचते हैं। अगर एक बाहर निकलने की कोशिश करता है ना, तो दूसरा उसे टाँग पकड़ के अंदर खींच लेता है। तो हम उस True. क्रैप बास्केट वाली सोसाइटी से बिलॉन्ग करते हैं। तो मैंने बड़े सपने देखे थे डेफिनिटली बचपन से ही एंड मैं चाहता था कि आई वांटेड टू बी अ पायलट बट टू बिकम अ पायलट मैं सोचा कि डायरेक्ट पायलट बनने का मेरा फीस था नहीं मेरे पास में। तो मैंने अपने पापा को बस एक ही चीज़ बोला था कि पापा आप मुझे 12th तक पढ़ा दो, उसके बाद मैं आपसे कुछ नहीं माँगूँगा। मैं अपना करियर खुद देख लूँगा, बस 12th तक आप कैसे भी मुझे पढ़ा दो। तो उन्होंने बोला कि मैं अपना बेस्ट ट्राई करूँगा कि तुम्हें 12th तक मैं इंग्लिश मीडियम पढ़ा दूँ, बाकी तुम देख लेना क्या करना है तुम्हें। सो दैट एंटरप्रेन्योरशिप वाज़ देयर इनसाइड मी क्योंकि मैं बहुत छोटे से कमाना स्टार्ट कर दिया था। मैंने छोटे-मोटे नेटवर्क मार्केटिंग जो सबसे कॉमन चीज़ होता है बचपन से ही वो कमाने में Right. एंड देन पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स मैंने सीखा नेटवर्क मार्केटिंग से। मुझे लगता है ये सब Okay. छोटे-छोटे नेटवर्क मार्केटिंग जो था, ये बहुत नॉलेज दिया, बहुत कॉन्फिडेंस दिया मुझे एंड मैंने अपना लाइक आई स्टार्टेड डूइंग ऑल दिस नेटवर्क मार्केटिंग पार्ट एंड आफ्टर 12th मैंने कुछ पैसा बनाया और मैंने डिप्लोमा कोर्स किया एंड आफ्टर दैट आई गॉट माय फर्स्ट जॉब इन एयर डेक्कन कैप्टन गोपीनाथ जो Okay. Okay. लो कॉस्ट कैरियर के गॉडफादर है and Right. I started my journey from there. And with time, I became the first cabin crew with AirAsia, Malaysia. मेरा जॉब Oh, मुझे मलेशिया में लगा। congratulations, sir. Uh, थैंक यू। तो Congratulations. Yeah. वो एक सपना ही था लोगों के लिए क्योंकि उसके बाद भी लोग को भरोसा नहीं होता था कि मेरे को जॉब लग चुका है मेरे कैबिन क्रू में। क्योंकि उनको लगता है एक छोटा से टाउन का लड़का इंडिया का पहला कैबिन क्रू कैसे बन सकता है मलेशिया में जाके। True. True. तो Big, big thing, sir. Big राइट, achievement. इट वाज अ अचीवमेंट फॉर मी एंड देन आई केम बैक टू इंडिया एंड when I joined Air India and I started flying US फ्लाइट। तो Okay. एक बार ऐसे अचानक से हुआ बिकॉज़ मेरा रिकॉर्ड बहुत अच्छा था फ्लाइंग में। मैं कभी छुट्टी नहीं लेता था क्योंकि जिस चीज़ में आपका पैशन होता है, उस चीज़ से आप भागते नहीं हो, आप उसके Correct. पास जाते हो आप। तो मेरा रिकॉर्ड बिल्कुल. था मैं छुट्टी नहीं लेता था। तो और एविएशन में ऐसा होता है कि अगर आपको एक ज़ुकाम भी हो, तो आपको फ्लाई करना अलाउड नहीं होता बिकॉज़ डेफिनिटली आपको वायरल है तो डेफिनिटली आप फ्लाई करोगे तो चोकिंग होता है। तो ऐसे ही हुआ Correct. था कि दिवाली के बाद एक फ्लाइट के लिए मुझे कॉल आया और फ्लाइट में मैन पावर का शॉर्टेज था। तो मेरे को रिक्वेस्ट चाहिए कि क्या आप नियो फ्लाइट ऑपरेट कर सकते हो? मुझे सर्दी था तो मैंने बोला कि मेरे को सर्दी है बट स्टिल आई डोंट माइंड मैं ऑपरेट कर लूँगा आपका शॉर्टेज है तो। क्योंकि कंपनी का प्रॉब्लम समझना एक अच्छा एम्प्लॉयी का एक वो होता है निशानी होता है कि आपको समझना है True. कंपनी के प्रॉब्लम में हो। तो मैंने ऑपरेट किया फ्लाइट को। तो जब मैं फ्लाइट ऑपरेट करने गया तो डेफिनिटली मैंने डॉक्टर से बताया कंपनी डॉक्टर को कि मेरे को बहुत कोल्ड है मेरे को फ्लाइट 16 घंटा नॉन स्टॉप फ्लाइट होता है दिल्ली से न्यूयॉर्क के लिए। तो मतलब 16 घंटा Correct. काम करना मेरे के लिए बहुत टायरिंग होगा। तो डॉक्टर ने मुझे एक दवाई दिया, उन्होंने बोला कि ये दवाई खा लेना, फ्लाइट में और सो जाना, आप ठीक हो जाओगे एंड देन यू स्टार्ट योर सर्विस। मैंने डॉक्टर के एडवाइस के हिसाब से फ्लाइट के अंदर जाके कुछ सैंडविच खाया, उसके बाद दवाई खाया एंड मैं रेस्ट करने गया। उसी टाइम में मेरे को पूरा कंप्लीट चोकिंग हो गया। मेरा पूरा विंड पाइप सूख गया कंप्लीटली एंड आई वाज़ नॉट एबल टू ब्रीथ, मैं साँस नहीं ले पा रहा था एंड फ्लाइट Okay. टेक ऑफ होके 3 घंटा हुआ था उस टाइम में एंड अराउंड 2-3 मिनट तक मैं साँस नहीं ले पाया और मैं फेंट हो गया। उसके बाद मेरे को फ्लाइट में लिटाया गया चेक करने के लिए एंड डॉक्टर को पेश किया हमने। फ्लाइट के अंदर कुछ डॉक्टर्स अवेलेबल थे बिकॉज़ न्यूयॉर्क फ्लाइट्स में ज़्यादातर डॉक्टर्स रहते हैं पैसेंजर्स में। दे केम दे सॉ अराउंड ऑक्सीजन उन्होंने लगाया मेरे को 5 मिनट 10 मिनट तक मैं सांस नहीं ले पाया एंड आई कंप्लीटली गॉट कोलैप्स्ड। 10 मिनट के बाद अगर 10 मिनट आप सांस नहीं लोगे तो डेफिनेटली यू विल लॉस योर पल्स एंड ऑल। डॉक्टर्स True. ने डिक्लेयर कर दिया कि वी लॉस्ट हिम और ही
सांस नहीं चल रहा और इवन उनका हार्ट बीट रुक चुका है। उन्होंने कैप्टन को इन्फॉर्म किया कि आपके क्रू का डेथ हो गया है ऑन बोर्ड। एंड ओके। कैप्टन आए, उन्होंने देखा कि क्या हुआ है करके, और कैप्टन ने बोला कि आई कांट टेक अ डेड बॉडी ऑल द वे टू न्यूयॉर्क, क्योंकि एक बार डेड बॉडी न्यूयॉर्क पहुंच गया तो उसको वापस लेके आना बहुत लंबा प्रोसीजर होता है। तो उन्होंने बोला राइट। कि नहीं, मैं डेड बॉडी को लेके नहीं जाऊंगा, मैं यहीं लैंड करूंगा जहां पे भी हम लोग से फ्लाई कर रहे हैं। सो इट वाज लाइक वी वर फ्लाइंग ओवर द उज्बेकिस्तान। उसके बाद अफगानिस्तान आने का था हमारा। एंड अफगानिस्तान इज नॉट अ सेफ प्लेस टू लैंड फॉर इंडियन कैरियर, क्योंकि ओके। मैं क्या कर सकता था। कैप्टन ने इमीडिएटली डिसीजन लिया कि मैं अफगानिस्तान तक नहीं पहुंचूंगा, उससे पहले ही मैं लैंड करूंगा। हमने विद फुल फ्यूल, कैप्टन ने वहां लैंड करने की कोशिश किया। उन्होंने पूरा फ्यूल डंप किया। जब एयरक्राफ्ट ओके। नीचे आता है तो डंप करना पड़ता है, बिकॉज एयरक्राफ्ट बहुत भारी होता है। तो विंग टिप टकरा सकता था, क्योंकि हम न्यूयॉर्क जा रहे थे तो 16 घंटे का फ्लाइट था और सिर्फ 3 घंटे कंप्लीट हुआ था। तो सिटी के ऊपर उन्होंने पूरा फ्यूल गिरा दिया, ओके। क्योंकि वो बहुत जल्दी वो लैंड करने के नीचे आए, बिकॉज हम उज्बेकिस्तान क्रॉस नहीं करना चाहते थे कैप्टन। तो विद द फुल फ्यूल वो डंप करते हुए उन्होंने एयरक्राफ्ट को ताशकंद एयरपोर्ट में लैंड किया। और एयरक्राफ्ट क्रैश होते होते बचा, बिकॉज एयरक्राफ्ट बहुत भारी था और फ्यूल पूरा डंप नहीं हो पाया था। टिप टच राइट। होते होते निकला, हमारा लेफ्ट साइड का पूरा लैंडिंग गियर कोलैप्स हो गया था। बहुत बड़ा ओह। एयरक्राफ्ट है 777। एंड लैंडिंग होने के बाद में जब एंटायर कैबिन का जो प्रेशर नॉर्मल हुआ, देन सडनली आई गॉट माई ब्रीथ आउट। तो एंड एंटायर टीम एंड क्रू गॉट शॉक कि जिसको डिक्लेयर कर चुके थे डेथ, वो वापस सांस कैसे ले रहा है, वो भी आधा ये घंटे मिरेकल था सर। ये एक तक। मिरेकल था। राइट, राइट। आधे घंटे तक जिसका डेड बॉडी पूरा नम पड़ा था, जिसका बॉडी ठंडा हो चुका था, वो सडनली रिकवर कैसे कर गया। एंड ओह माय गॉड। देन प्रॉब्लम ये हो कि उज्बेकिस्तान में ताशकंद एयरपोर्ट में इतना बड़ा जहाज कभी लैंड नहीं किया था। तो उनके पास कोई लैडर नहीं था, उनका एरोब्रिज नहीं था ताकि वो मुझे उतार सके। तो उन लोग ने ऑन द स्पॉट ब्रिज को बिल्डिंग करने लगे, बनाने लगे। और आफ्टर 2 आवर्स उन्होंने एम्बुलेंस लेके आके मुझे वहां से हॉस्पिटल लेके गए। एंड उन्होंने पूरा चेक किया। एंड उनके लिए मैं गिनी पिग बन चुका था, बिकॉज अब वो मेरे पर रिसर्च करना चालू करी थी कि मरा हुआ आदमी जिंदा कैसे हो गया। जिंदा कैसे हो? ओह माय हाँ, गॉड। तो मेरे ऊपर पूरा उन्होंने रिसर्च किया। बहुत, आई थिंक वो लोग 1 वीक मुझे वहीं रखे उज्बेकिस्तान में। वहां से उन्होंने मुझे बॉम्बे ट्रांसफर किया। फिर बॉम्बे से उन्होंने मुझे दिल्ली ट्रांसफर किया। मतलब 6 महीने तक सिर्फ मेरे बॉडी के ऊपर रिसर्च चल रहा था। और मैंने ये ओह माय डिसाइड किया कि अब मुझे जॉब नहीं करना है, क्योंकि सारी जगह ब्रेकिंग न्यूज में मैं मर चुका था ऑलरेडी। तो अब मैं बोला कि ये मेरा नया बर्थ है और मैं अपने नए जन्म में कुछ अलग करना चाहूंगा। मैं एक 9 to 5 एम्प्लॉय बन के नहीं जीना चाहता अब। तो दैट वाज अब द आप इतिहास को आप इतिहास को रचना नहीं था, आप इतिहास को रचना था। शायद इसीलिए आपने, राइट। भगवान यस। ने आपको वापस से वो जीवन दिया, सेकंड बर्थ, सो कॉल्ड सेकंड बर्थ, जिसमें आपको राइट। हिस्ट्री क्रिएट करना था। और आपने राइट। फिर डॉक्टर सुमित वही इंडस्ट्री चूज किया जिस इंडस्ट्री, वो आपका पैशन भी था, जिस बट उसी इंडस्ट्री में आपको डेट घोषित किया गया था, तो आपने सोचा अब इस इंडस्ट्री को ही बदल देते। राइट। राइट, दैट्स व्हाट माय ड्रीम इज, बिकॉज बहुत सारे लोग आज, क्योंकि उस फ्लाइट के बाद जब मैं फ्लाइट ऑपरेट करता था, मेरे पास एक ही सवाल आता था सबसे, कि मरने के बाद क्या होता है। मैं बोला ये जो सीक्रेट ये मेरे पास है, एंड आई डोंट वांट टू रिवील दैट थिंग, क्योंकि वो जो आधे घंटे का एक्सपीरियंस था मेरे पास, वो एक्सपीरियंस लाइक वो कभी जिंदगी में भूलूंगा नहीं, कि वो आधे घंटे में सब क्या हुआ था। कि ओह माय लाइफ और गॉड। डेथ के बीच में जो चेम्बर होता है वो क्या होता है मुझे पता है, मैंने देखा है। Oh my तो God! You are probably the first person in the world who knows कि डेथ के बाद होता क्या है। हाँ? You got no, that mystery in this your is life. not the first, because I think this is there in my family history also, कि मेरी जो ग्रैंड नैनी है, मतलब मेरी जो ग्रैंड माँ की मदर है, शी वॉज ऑल्सो Mother. डेड फॉर 4 days। वो 4 days Okay. की डेड थी। एंड उनका डिस्कवरी चैनल में पूरा एपिसोड शूट हुआ था। एंड शी Oh my गॉट God. डेड एंड शी केम बैक आफ्टर फोर Oh my डेज एंड शी God. वोक अप एट हर, चिता में फ्यूनरल के टाइम वो जागी थी। हाँ हाँ. Okay. तो हमको लगता है कि दिस इज समथिंग अ ब्लेसिंग इन माय दैट ब्लड लाइन, कि हम मर के जिंदा होते हैं। So his history been repeated once again Yeah, only, this right? history went event, because my grandma expired in 109। Okay. and Oh my. before Oh that my when God. she expired the first time, she was 75। मतलब 75 के Okay. बाद वो उन्होंने एक फिर लाइफ मतलब जी। 25 30 34 years और उसके बाद में रहे। Oh my God. राइट। Wonderful. हाँ, तो ये चीज था। तो एंड ये चीज मैंने बचपन से देखा, मैंने उनका, उनकी गोद में सोते हुए मैंने उनकी एक कहानी सुना है पूरा,
कि लाइफ के बाद क्या हुआ था उनके साथ में। एंड व्हेन आई एक्सपीरियंस इट आई कैन रिलेट, यस वो ट्रूथ है, मतलब आई एम मरने के श्योर बाद आपकी लाइफ में भी डॉक्टर सुमित पिक्चर बन रही है कि कैसे आपकी यस ये, देयर आर तो सम हम लोग एक दिन प्रेडिक्शंस आके लाइक दैट। देखेंगे इस मूवी को जरूर, कि लिटरली आपके मुझे उस, आधी दुनिया जानना चाहती है कि मृत्यु के बाद क्या होता है। राइट। अभी अभी ये जब वीडियो रिकॉर्ड होके डॉक्टर बिंद्रा जी के पास जाएंगे तो वो भी काफी क्यूरियस उनके अंदर भी आएंगे कि अच्छा ये एक्सपीरियंस को कैसे दुनिया तक दिखाया जाए। तो राइट राइट डॉक्टर क्योंकि सुमित, एक मेरा और क्वेश्चन है ये कि आप एक इंडस्ट्री में आए, एविएशन इंडस्ट्री में आए, बट आप आपका बड़ा अच्छा पॉलिटिकल टच भी है, कई सारे इंस्टीट्यूशंस के आप चेयरमैन हैं, राइट स्पोर्ट्स के हैं, तो इतना डाइवर्सिफिकेशन आप कैसे मेंटेन करते हैं आई थिंक और इट्स ऑल कहाँ कहाँ अबाउट पे है, थोड़ा सा इन टाइम ब्रीफ अगर मैनेजमेंट। बताना हो See, तो। time, like I manage time very well, and I think ओके। for politics something, वो leadership skill मेरे को बहुत बचपन से, like if I say from school time, I was a leader for my school, ओके। and मेरे जो सर्कल थे वो सारे लीडर्स लोग के रहे हैं। जैसे मेरे जो ओके। स्कूल के जूनियर्स थे, आज वो मेयर हैं, कहीं एमएलए हैं, वो मेरे सर्कल था बचपन से। एंड देन आई मूव टू मुंबई, एंड मुंबई में आई लाइक बीइंग अ आउटसाइडर, अ नॉन मराठी, आई हैड वन द इलेक्शंस फॉर मुंबई स्टूडेंट कांग्रेस, एंड मैं वहां पे 3 साल बीइंग अ प्रेसिडेंट रहा मुंबई में स्टूडेंट कांग्रेस में। देन आई मूव राइट नाउ, आई एम अ नेशनल सेक्रेटरी to Youth Congress of India and in charge राइट। for Karnataka and Chhattisgarh state. Simultaneously, I am a head for disciplining committee, IT cells, sports cells also. तो मैं मल्टीपल रोल्स प्ले कर रहा हूँ ऑनरेबल सरपवा जी के अंडर में। और ओके। साथ ही साथ स्पोर्ट्स में डेफिनेटली मेरी दिलचस्पी हमेशा से रहा है, बिकॉज मैं एक नेशनल प्लेयर रहा हूँ एथलेटिक का। बचपन से मैंने अराउंड वंडरफुल। 22 नेशनल्स खेला है मैंने। और वंडरफुल, राइट सर। बीइंग अ स्पोर्ट्समैन, मैं स्पोर्ट्स को प्रमोट करता हूँ बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं मेरे को हम्म। पता है कि स्पोर्ट्समैन कितना मेहनत करता है अपनी जिंदगी में आगे आने के लिए। एंड मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स में कभी फेल नहीं होता। जिसने राइट। स्पोर्ट्स खेला है उसमें हमेशा एनर्जी रहता है, वो गिव अप नहीं करता कभी। तो इसलिए मैं स्पोर्ट को बहुत प्रमोट करने की कोशिश करता हूँ, एंड आई ऑलवेज ट्राई टू गेट इनटू समवेयर जिस गेम में एप्लीकेशंस नहीं हो, ताकि मैं उसको गेम को आगे ला सकूं। जैसे आप अगर बोले क्रिकेट, हॉकी, ये सब गेम ऑलरेडी एफिलिएटेड है, ऑलरेडी ब्रांड इनके पास पैसा है, इनको किसी प्रमोशन राइट। की जरूरत नहीं है। पर मैं उनको सपोर्ट करता हूँ जिस गेम को लोग आगे लेके आना चाहते हैं, जो जहाँ प्लेयर्स आगे आना चाहते हैं। राइट। So I try to help them. So right now in sports, I'm a Secretary General to World Armed Sport Federation and Secretary General राइट। to Indian Armed Sport Federation. I am a founder for Armed Sports League. तो ये मेरे आर्म स्पोर्ट्स का है। एंड देन आई एम एन इंडिया प्रेसिडेंट फॉर लेग बॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। लेग बॉल फेडरेशन, लेग बॉल एक बहुत नया सा गेम है, बट ये हमारे संस्कृति में इस ये गेम बहुत पुराना है। लॉर्ड कृष्णा ये गेम खेलते थे लेक के सामने, जब उन्होंने बचपन में एक बार जब सर्पनाग के साथ उनका जो वो लड़ाई हुआ था, पूरा झगड़ा, उस टाइम में राइट। राइट। वो लेग बॉल खेल रहे थे, जिससे बॉल हाँ, पानी में चले गया था। पानी में चला गया, करेक्ट सर। राइट, हाँ, तो ये लेग बॉल वही गेम है। और तो अब इस कालिया गेम, के ऊपर जाके उनको राइट पुश किया। राइट राइट सर। राइट, तो ये लेग बॉल गेम था उस टाइम में, तो उस गेम को कोई आगे नहीं लेके आया। तो मैं इंडिया का प्रेसिडेंट हूँ लेग बॉल का, और मैं इस गेम को प्रमोट कर रहा हूँ पूरी तरह से, बिकॉज आई एम ए कृष्णा डिवोटी एंड मैं इस्कॉन का लाइफ मेंबर भी हूँ। और ओह माय मैं गॉड। बहुत सालों से, 15 सालों से मैं इस्कॉन से जुड़ा हुआ हूँ। ओके, तो कभी ऐसा हुआ कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर भी इस्कॉन में काफी अच्छा दिलचस्प रखते हैं, अच्छे डिवोटी हैं, और आप भी रखते हैं, तो कभी आप लोगों का इंटरेक्शन हुआ किसी प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे यू हैव कम टू नो ईच अदर? नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ हमने, क्योंकि आगे हो जाएगी सर, आगे हो हाँ, जाएगी। होपफुली हो जाएगा, क्योंकि ये एक कॉमन प्लेटफॉर्म है हमारा और कृष्णा का, राइट। तो ये हो तो जाएगा। सर आपने स्पिरिचुअलिटी में भी अच्छा आपकी पकड़ है, स्पोर्ट्स में है, और बिजनेस एरिया में भी आप कई जगह प्रेसिडेंट हैं, तो यस, क्या है थोड़ा। बिजनेस से देखो, एजुकेशन से एविएशन एजुकेशन में तो हम लोग पायोनियर हैं, बीइंग द हम्म। ओनली एविएशन ऑथर इन इंडियन मार्केट। डेफिनेटली हम्म। मेरा एक अलग प्लेटफॉर्म मेरा बना हुआ है, मतलब एविएशन गुरु के बुक्स आधे इंडिया यूज करती है, इवन ओवरसीज में हमारा सेल्स बहुत अच्छा है। अमेजोन, ओके। फ्लिपकार्ट, मेरे बुक्स का सेल्स बहुत हाई है, तो हम्म। वो मार्केट हमारा अच्छा है। प्लस फूड बिजनेस में भी वी आर इनटू क्लाउड किचन। आई हैव अ ब्रांड ओके। कॉल्ड गॉड्स ओन टेस्ट, जीओटी। सो दिस जीओटी came from God's own country, because this is authentic Kerala food which we ओके। ओके। under God's own taste.
तो यहाँ पे आपको साउथ का ऑथेंटिक फूड मिलेगा। तो हमारा पहला आउटलेट्स अभी बैंगलोर में चालू हुए हैं, जो हमारे प्रीमियम किचन है राइट नाउ। एंड देन वी आर मूविंग अहेड टू पुणे, रांची एंड छत्तीसगढ़ इन द कमिंग Oh, 3 मंथ। तो हम अपने oh. चेन का भी एक्सपैंड कर रहे हैं। एंड Mhm. इस फूड बिजनेस इज अ प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस, तो हम लोग उसमें प्लान किए थे। और हम मार्केट टैप करते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। पैंडेमिक में फूड डिलीवरी सर्विसेज बहुत चले True, एंड ये true. डिमांड है, क्योंकि इसमें वी डोंट हैव रेस्टोरेंट फॉर्मेट एंड वी आर नॉट प्लानिंग फॉर दैट आल्सो, बिकॉज़ हमको पता है ये पैंडेमिक से जल्दी खत्म नहीं होने वाला। तो जब तक नहीं होता डेफिनेटली क्लाउड किचन विल मेक गुड मनी आउट ऑफ इट। Correct, तो वो हम correct. कर रहे हैं। प्लस डिजिटल प्लेटफॉर्म में भी हम अपने एजुकेशन लेके आ रहे हैं, एविएशन का पूरा, Okay, क्योंकि डिमांड्स okay. बहुत हाई है। तो हम डिजिटल प्लेटफॉर्म में आने देते हैं, और इस मार्केट में अभी तक कोई नहीं है। तो जो मार्केट में कोई Oh, भी नहीं है, डेफिनेटली उस मार्केट के लिए हमारे लिए बहुत अच्छा स्कोप है हमारे पास। ओके। जहाँ चाह वहाँ राह, तो सर आपकी राह चाहत काफी स्ट्रॉन्गर है। और सर आपने कई सारे आपकी 21st को बुक की भी लॉन्चिंग है, जैसे हमारी यस, आपकी 21st बात ऑफ हुई। दिस मंथ मेरा इमोशनल इंटेलिजेंस करके मेरे बुक का लॉन्च है। ये हम्म। बहुत डिमांड में रहा है, ये कोर्स में से बहुत लोग पूछते हैं कि सर आप टाइम मैनेज कैसे करते हो इतना सारा। करेक्ट, तो ये करेक्ट। सब सवाल है, इन सबको मैंने बुक्स में बना दिया, क्योंकि मैं सब जगह नहीं जा सकता। जब मैं ट्रू। सब जगह नहीं जा सकता लेक्चर लेने के लिए, डेफिनेटली मेरे बुक्स तो पहुंच सकते हैं वहां पे। तो मैंने बिल्कुल सर। इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर एंड टाइम मैनेजमेंट के ऊपर मैंने बुक लिखा है, जो ओके। गवर्नर ऑफ झारखंड लॉन्च करने वाले हैं हमारे एसोचएम एजुकेशन समिट में, जहाँ मोर देन 100 यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहेंगे। और उसमें आप प्रेसिडेंट भी हैं सर? आई एम अ चेयरमैन टू एसोचएम स्किल डेवलपमेंट। चेयरमैन। यस, ओके। यस, यस। ओके। चैम्बर की वंडरफुल। तरफ से भी बहुत सपोर्ट मिलता है, क्योंकि हम्म। हमारा चैम्बर बहुत पुराना है। इट्स 101 इयर्स ओल्ड चैम्बर, एसोचैम। तो 101 इयर्स ओल्ड चैम्बर में 4.5 लाख मेंबर हैं। एंड ओह माय गॉड। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलते हैं। एंड वी आर रियली वेरी क्लोज टू अ लॉट ऑफ गवर्नर्स। वो मुझे सपोर्ट करते हैं बिकॉज दे अप्रिशिएट माय नॉलेज एंड दे वांट मी टू डू समथिंग फॉर देयर स्टेट, फॉर द स्किल डेवलपमेंट। तो मैं मेरे को भी अच्छा लगता है कि जब कोई पॉलिटिकल पीपल वांट टू डू समथिंग गुड फॉर द स्टेट एंड द कंट्री। So you are such a political person who was really making the country at a next level of politics in term of education, in term of sports, in term of innovations and all these things. So here the politics doesn't mean the politics of current scenario. You are making the politics in a such a way that the people will love to be the part of politics. कि उसको education में क्या बेहतर कर सकता है, देयर शुड बी सम sports में चेंज क्या सकता है। चेंज मेकर नो। हम चीजों को उसी को कंटिन्यू करना और कुछ नया लेके आना हमेशा अलग होता So है। you एंड are the लॉट ऑफ paradigm टाइम setter. You are the setting the different paradigm. जैसे दुनिया बदल रही राइट, है, you are setting the everything. So paradigm. डेफिनेटली Okay, आई एम we एबल are टू moving डू। forward, Dr. Shumit. So your aim is to make the transformation in area of aviation, and Dr. Vivek Bindra aim is to make the transformation in Indian education system. राइट, And राइट। you are very very keen to have a, even I wish, a very long term relationship between you and Dr. Vivek Bindra, because together you can really transform the country. So, what is your vision if you are meeting with Dr. Vivek Indra? So, what would be your vision, and how both of you, if you meet, if you make a collaboration, how both of you can make the country transform in two different industries? Yeah, I'll say in a single line that we will make our country as a future oriented country. You know, Oh my the God. world will look to India to come and invest over here. You know, Okay. so that's what I am looking ahead. And basically the concept which I have a lot of thought process matched with Dr. P. Bindra, because I Mhm. am also looking for something like, to come in innovation with Okay. the education also. Okay, and I want to change the old, the taboo which is going on in the education system, that you just need book knowledge to become an entrepreneur. No, it's not like that. You need skills, and I'm here to Right. develop the skill of our country. And if a Correct. person is having skills, they can do anything. Because if we take the history of any big people like Elon Musk, Jeff Bezos, they are not the engineers and all college dropouts, but they made history because they are Right. keen, and yes, talent we can hire. If we need knowledge, we can hire the people, but you should have the caliber to run that. So So, I'm in a looking for that. nutshell, you also want to pass the message to the student of country all across the globe that they should learn the art and science or to develop the new skills. And Yes, that's literally, what. post this pandemic, COVID, the situation has completely changed. The Yeah, way of doing business has changed. The way of hiring people has changed. The way of working in corporate has changed.
So you want to make not change, but a complete transformation, so that people will embrace that change, and he can really do something greater for the country and for himself also. True, true, true. That's what is like our target is. And see, really right now, because we can say this because in our industry, I don't have any competition. And Hmm. industry need huge manpower support. Because down the line, 4 5 years, we can when we see like 2 300 airports coming out, there have 10 20 new airlines coming up in the country. From where we'll get a manpower? Then what will happen? The people will start recruiting people from foreign countries. If I give you an example, I am from a city called Bhilai. We have a Bhilai Hmm. steel plant there. And back 50 years back when the plant started, no, that time we used to have Russians over there. They came to make the entire plant. They were running the entire thing because Indians were not qualified. So we were dependent on Russians to make the plant. So now Hmm. in aviation we are in that category. When we don't get pilots, we go to foreign. We go to Germany, we go to US and get the pilots from there to India, and we pay our hard-earned dollars to them, and they Dollars to take them them. back to their country. We So are making economy is country getting poor. weak day by day because of that. I don't want that thing to happen again in our country. We should take past experience and be ready for the future. So if we are future ready, if we have enough number of pilots, enough number of the people for the aviation side, we don't have to depend on anyone, and we can lead the country with this thing because connectivity is Aviation the plus main word. entrepreneur, aviation plus entrepreneur skill will completely will help us to do something unique, something better. Dr. Vivek Bindra always said कि NNB होना चाहिए, next new better, next new better. So Right. we'll lead something next new better. Huh? Because that future of aviation, we say like right now, we are not using supersonic jets. Might be down the line, 1.5 year, you will have a supersonic jet. It means a 15-hour journey can be covered in 7 hours. Oh my God, oh my God. Yeah, so because we Just used to I have visualize sir, and I can see कि अभी अगले 2 साल 3 साल बाद में क्या होना है. बहुत कुछ चेंजेस हो जाएंगे मुझे पता है। तो ये जो चेंजेस करें, क्या हम तैयार हैं? क्या हमारे पास इतना मैन पावर स्टॉक में है कि हम लोग जो यूटिलाइज कर सके? क्योंकि हमेशा देश में हमारे देश में यही होता है कि जब उस चीज में जब डिमांड आता है तो लोग भागते हैं वो कोर्स करने के लिए। जब तक 4 साल का कोर्स नहीं करते तब तक वो डिमांड खत्म हो चुका होता है। खत्म हो तो चुका हम है. क्या हम रेडी हैं उसके लिए? तो मैं यही चाहता हूँ कि वी शुड बी रेडी, वी शुड बी फ्यूचर रेडी एंड वी शुड स्टार्ट गिविंग अपॉर्चुनिटी टू कैंडिडेट एंड वी शुड गिव अ राइट नॉलेज टू राइट स्टूडेंट्स हु आर लुकिंग फॉर करियर। आज के डेट में Right. सारे बच्चे भेड़ चाल कर रहे हैं इंजीनियरिंग के लिए, डॉक्टर के लिए। अरे आगे और भी अपॉर्चुनिटीज हैं, व्हाई डोंट यू Opportunity. सी हियर एंड देयर? तो ये चीज बहुत जरूरी है कि हम लोग उनको राइट नॉलेज देना राइट टाइम पे। राइट, राइट नॉलेज राइट टाइम पे और राइट डाइवर्सिफिकेशन करके अगर राइट स्किल्स को बंदा ले लिया तो राइट इंडस्ट्री में पहुंच जाएगा. जी जी जी। राइट सर. सो श्योर सर, आई विश कि ये मैसेज हम जरूर डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर तक पहुंचाते हैं, और आपके और बिंद्रा जी के मिशन जो है घर घर एंटरप्रेन्योर करना, और आप चाहते हो घर घर एविएशन इंडस्ट्री को करना, इतने सारे स्किल्स इतने सारे अपॉर्चुनिटीज है उसको ग्रैब करना. So I think together both of you can make sure a great success for all of us, and you are working with a vision. You have a purpose in your minds to make the complete transformation to the country. You are contributing at many areas, in spiritual areas like with Krishnas, in political areas, in obviously being the entrepreneur, you are helping the people to generate more and more employment. And so both of you are doing the fantastic job for us, people like us, and we are on the also same radar to make something better, bigger, and uh, better for all of them. So, very excellent and exciting conversation with you, sir. It was really a pleasure and privilege for me to have a chat with you on this topic, because I could not have even imagined that a personality like you one day will chat with me on this topic, and that too the aviation was completely new for me, sir. Yeah. So, in a nutshell, sir, what are the three messages you want to pass to the student of the country and the Bada business team and Dr. Vivek Bindra? In a different three each for each one. Okay. Really, I got another meeting in 10 minutes. 12 o'clock, I have another Okay. Yeah, investor sir. meeting. We'll close in 5 minutes, sir. Yeah. So, okay. For the youth of the our nation, I should say definitely focus for skill development. Okay. Okay. And be focused for career. Don't be get mix up with the drugs and all, because that's what the problem we are facing nowadays. So they have to avoid this thing.
and respect the people who are giving you knowledge. It can come from anywhere. It's not only, Okay. it can come from your mobile phone also nowadays. It can come from your teacher. It can come from your parents. So respect the places from where you are getting knowledges. Okay, so this is the three things for our youth. And for Dr. Vivek Bindra, definitely he's doing a great job. Okay, he's developing the nation, and I think the future. He's the person who is developing the economy of the nation, and he's giving a motivation to the youth to do something. Right. Throughout this Right. pandemic, people really had given up their hope, but with his few-minute videos, he's encouraging people to do something great. Correct. That's what, Correct. like, he's a motivational figure for our nation itself. I wish him to get some Padma Shri very soon. Sure, sir. Yeah. Thank you so much, Dr. Shumit, for this wonderful chat with each others. And I wish to see you very soon with Dr. Vivek Pindra. And we'll watch that meeting for sure. And not only me and we, the entire country will watch your the first interview with Dr. Vivek Pindra very soon. We are in a mission to that, to have a strong collaborations to make the country transformations. And the people like us can enjoy that journey because someone lead, someone follow, and someone just watch. So we are in the category of following you. So Thank thank you. you so much, Thank you. Aviation Guru. Thank It's you. okay, sir. Thank you.